Today we are going to cover the monsoon, right? Its origin and characteristic. Okay. So what is monsoon all about? Have you heard about monsoon? सुना है कभी? क्या होता है मानसून? मतलब बारिश होती है। किधर से आती है? मतलब बारिश से जी, चलिए देखते हैं। मानसून is the seasonal reversal of wind direction in a year. Seasonal reversal of wind direction in a year, right? एक वर्ष के अंदर हवाओं की दिशा में पूर्ण रूपेण परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। सीजनल रिवर्सल, गर्मी में कुछ और डायरेक्शन है, सर्दी में कुछ और डायरेक्शन है। रिवर्सल मतलब उल्टा हो जाना, ऋतुवार परिवर्तन। सीजनल रिवर्सल ऑफ होम विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इन अ ईयर। 365 दिन के अंदर, एक साल के अंदर हवाओं की दिशा में पूर्ण रूपेण परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। बराबर। पता चला कि गर्मी में लैंड से ओशियन की तरफ विंड जा रही, पता चला कि सर्दी में ओशियन से लैंड की तरफ विंड जा रहे। एक बात कहना है समझाने के लिए। तो इस तरह का जब सीजनल रिवर्सल हो, क्या कहा जाता है उसको? मानसून। मानसून वेयर फर्स्ट नोटिस्ड बाय, फर्स्ट स्टडीड बाय Arabian scholars. Arabian scholars were the first one to notice about this phenomena, and the name of the scholar was Al-Masudi. For the first time, he noticed about the monsoonal winds in Bay of Bengal. Right? So, monsoon is an what? Arabic term. In our NCERT it is written monsoon is an Arabic term. The term coined by whom? Al-Masudi, in fact, right? Now some of the scholars, they also say that it may be derived from the Malayalam word mojim. Either monsoon is derived from mausim, Arabic word mausim, by whom? Al-Masudi, or some of the scholars, they believe that the monsoon is also derived from the Malayalam word mojim. Barabar. Monsoon is a local wind at large scale. Monsoon is a what? Local wind at large scale. This phenomena take place almost in 22 countries of Asia. All those countries which receives monsoonal rainfall are referred as monsoon Asia. Right? It is a localized phenomena, do not take place, do not cover the whole globe. It is localized phenomena. That's why it is referred as what? Local wind. So monsoon is a local wind at large scale. Let's see how. In case of permanent winds, their velocity and direction remains the same throughout the year. Their velocity and direction remains the same throughout the year, 24/7. Their velocity and direction almost remains the same throughout the year. That's why referred as permanent wind. Like
like trade wind, a kind of what? Permanent wind. Like westerly wind, westerly winds, kind of permanent wind. Third one is polar wind, kind of permanent wind. But monsoon is a local wind. Means what? Their velocity and direction changes according to season. So what is difference between local wind and permanent wind? In case of permanent wind, they cover whole globe. That's why they are also referred as planetary wind. They blow on the whole planet, right? Also known as planetary wind, like trade wind, westerly, polar winds. Clear? Their velocity and direction almost remains the same throughout there. But in case of local wind, their velocity and direction changes according to season. For example, Lu, a kind of local wind, Khamsin wind in Egypt. It blows for almost 50 days. Khamsin means 50 in Egypt. Sirocco, known as blood rain in Tunisia, Algeria. Like we have Santa Anna wind, doctor wind, free mental doctor wind in Australia also, whereas doctor wind, Harmattan in Africa. So there are numerous local winds on the globe. Their velocity and direction changes according to season, right? In case of India, our local wind is Lu, mostly predominant in the summer season, April, May. In fact, extended, prolonged up to June also, right? So this is difference between what? Permanent wind and. So is this statement, is it justifiable? Whether I said, a very first statement I gave in the classroom, monsoon is a local wind at large scale. Is it clear to you? Right? Monsoon is not a planetary wind. Monsoon is not a permanent wind. Clear? The most of the India, it is under the influence of monsoonal winds in the month of June, July and August only. Köppen, one of the greatest climatologists, what he said, 77% of rainfall of India we receive in just 3 months, June, July and August, right? 77%, remaining 23%, 9 months. But 77% of moisture, 77% of rainfall in India we mostly obtained in these 3 months, June, July and August. Clear? So this is the importance of monsoon. Clear? Now come to the point. So let's see. Just I want to show you actually what are the important permanent winds. So we have 3 what? Permanent winds on the earth surface. Okay? The first one is this one, polar wind from polar high pressure areas to subpolar low pressure areas. The second one is westerly wind from subtropical high region towards the subpolar low pressure region. Clear? Are you getting? And the next one is trade winds blowing from subtropical high region towards the equatorial low pressure region. Blowing from subtropical high region towards the equatorial low pressure region. Clear? During its movement from high pressure towards the low pressure, they tend to bend towards right due to Coriolis force. In absence of Coriolis force, these winds might have been blown like this one, straight from high to low, from high to low, from high to low. But since Earth is rotating and the velocity is different at different latitudes, so Coriolis force is produced due to this difference actually. Earth is rotating, Earth has different velocity at different latitude. Near the equator,
velocity of the earth is very high, but near the pole velocity of the earth is very low. So this difference result into the origin of birth of what? Coriolis force, and it turns the moving wind towards right in the northern hemisphere. Since this wind is coming from high to low, it will, what will be the right side of this wind? Here. What will be the right side of this wind? This side. What will be the right of this wind? Here. So these winds tend to move in the right hand side, where in this case in the southern hemisphere these winds tend to move in the left hand side. So wind here moving from high to low, high to low, high to low. So in absence of Coriolis force, these winds would have been like this one. But what is the left direction of this wind? Here, left. What is the left direction of this wind? Like this one. What is the left direction of this wind? Like this one. So Coriolis force results due to the difference of what? Difference of earth velocity at different latitude, right? Now, so are you aware about these winds? These are referred as what? Permanent wind or planetary wind, since they blow on the whole planet. That's why they are known as planetary wind. Their velocity and direction remains the same throughout there, right? But in case of local wind, their velocity and direction changes according to season. Let's see. The first one in here, it is equator. Okay, near the equator. This one is what? Trade wind. The first wind is trade wind. Second one is again trade wind. Okay, bolo. Next one, westerly winds. Westerly winds of southern hemisphere. Okay, and polar winds of northern hemisphere. So their velocity and direction almost remains the same सालों भर throughout the year, all the 365 days. Now, only in this region here, only in the Indian subcontinent region here, only in the Indian subcontinent region, the velocity of the direction of trade wind changes according to season. The rest of the year they blow from land towards the ocean, but in summer season, June, July, August, these trade winds are having very unique, very peculiar character. That's why monsoon is one of the most widely studied climatic phenomena on the globe, even wider than, greater than El Nino and jet stream concepts, right? So monsoon is one of the most widely researched subject on the globe. There is joint team of Indian and Russian scientists. They are doing research in the Indian Ocean since 1977, and the name of the team is MONEX, that is Monsoon Expedition. What is the name of that joint team, research team of Indian and Russian scientists? This is MONEX, Monsoon Expedition. So why monsoon is so unique and so peculiar in character? Rest of the world here, there is no change in the direction of polar wind, no change in the direction of westerly, no change in the direction of trade wind anywhere else in the world except this Indian subcontinent region. That's why monsoon is so unique, so peculiar. There are 27 theories which deals with the origin of monsoon, and no one is complete in fact, right? Why monsoon is so unique? If someone asks after attending this session, कोई पूछे why monsoon is so peculiar, तो क्या बोलोगे? कहीं भी ट्रेड विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कहीं भी ट्रेड विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैक्सिको में, वेस्टर्न अफ्रीका में, यहाँ साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी चेंज हो रहा है किसी विंड का डायरेक्शन. लेकिन ये इसके साथ का बवाल है भैया, देखो ये चेंज हो गया, अरे वाह वाह, ये पूरा ये ब्लू वाला क्या हो गया,
लैंड से ओशियन आ रहा है ना, ओशियन से लैंड की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए मॉनसून क्या है, यूनिक है। इतनी बात समझ में आई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्लास किस नोट पे शुरू किया, मॉनसून इज सीजनल विंड एट स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। 22 कंट्री को कवर कर रहा था, छोटा स्केल हुआ कि बड़ा स्केल हुआ, लार्ज स्केल। सो मॉनसून इज ए लोकल विंड एट लार्ज स्केल। इज इट क्लियर टू यू? सेकंड, मॉनसून पिक्यूलियर क्यों है इतना? कहीं भी चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। कब? जून जुलाई अगस्त में। कहां पे? सिर्फ इंडियन ओशन, और दूसरी जगह क्यों नहीं चेंज हो रहा है? यही तो है रहस्य, इसलिए तो मॉनसून पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जेट स्ट्रीम थ्योरी कुछ और बोलेगा, ठीक है, हैली का थ्योरी कुछ और बोलेगा, कोटेश्वरम कुछ और बोलेगा। नहीं पढ़ना है, इतना टेंशन मत लो आप लोगों को, ऑप्शनल में भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आई मेरी आपको? कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलो अब जरा देखो, कुछ लोकल विंड्स है, जिसे फेमस लोकल विंड्स है, इस सब पे अलग अलग सेशंस होंगे हमारे, 2-2 घंटे की पूरी एक लेक्चर है। अब कोरियालिस फोर्स हमने सिर्फ बोल दिया, उसका पूरा डेरिवेशन है, कैसे कोरियालिस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पे, 1 क्यों होता है पोल पे, क्यों होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पूरी इस प्रॉपर क्लास है। अभी लोकल विंड्स वगैरह इसी प्रॉपर क्लास है। तो अभी तो जस्ट सिर्फ एक हम डेमो लेक्चर में हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलो मॉनसून लेट हो रहा, रोज न्यूज में आ रहा। कल एक हमने डेमो लेक्चर में साइक्लोन टॉपिक लिया था। क्यों लिया साइक्लोन? रोज आ रहे थे, हम खुद घिर गए थे उधर सूरत में, वडोदरा में, ट्रेन मेरी, डर ही रहते, पता नहीं कहीं साइक्लोन वोक्लोन पहुंच पाए कि नहीं टाइम पे। बात समझ में आई? अरे पहले पढ़ रहा है, अब तो कम से कम एटलीस्ट बोल सकते हो ना कॉन्फिडेंस से कि हाँ साइक्लोन को कैसे नेम करते हैं। किया था ना कल सेशन अटेंड हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई, अब तो कर सकते हो। नेक्स्ट साइक्लोन का नाम क्या होगा इंडियन ओशन में? तेज, कल बताया था ना। उसके अगला वाले का क्या नाम होगा? हमूम, है ना, तो पूरी लिस्ट है। चलो उसी तरह से अब कम से कम आज के सेशन अटेंड करने के बाद कम से कम ये हो जाए आपको कि हाँ समझ पाओ चीज़ों को कि मॉनसून डिले क्यों होता है, ठीक है। कल जैसे कल के सेशन अटेंड करने के बाद कम से कम तुम्हें ये पता चल गया कि साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का आई क्या होता है, लैंडफॉल क्या होता है, कितने तरीके के साइक्लोन होते हैं। तो आज कम से कम ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाए कि मॉनसून होता क्या है, ये क्या बला है, कैसे डिले कर जाता है। रोज़ आईएमडी का प्रेडिक्शन आता है ना कि मॉनसून इस बार अच्छा होगा, ठीक है, इस बार ख़राब होगा, किस बातों पे निर्भर करता है, यही चीज़ तो सीखना है मुझे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये सब अपने आप में एक एक टॉपिक है, आगे भी हम लोग देखेंगे फुल लेक्चर में। देखो तो जैसे हमने कहा कि लोकल विंड्स, तो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड, लाइक चिनूक, वी हैव चिनूक विंड, यहाँ पर है चिनूक, जोंडा, सांता अन्ना, खमसिन, दिस वन सिरोको, ब्लड रेन, खमसिन इन इजिप्ट, बात समझ रहे? डॉक्टर हरमट्टन जिसको बोलते हैं, कारा बुरान, बुरान, बात समझ पा रहे हैं? उसी तरह इंडिया में कौन सा है अपना? लू, क्लियर? तो मॉनसून इज ए लोकल विंड एट largest, their velocity and direction changes according to season, clear? So if someone asks why monsoon is so unique, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे उसको कि in the rest of the world the direction of the permanent wind is almost remains the same, but in case of Indian subcontinent region, Indian Ocean region, the direction of trade wind changes according to season, especially in summer season. This unique character led to the peculiarity of uniqueness of monsoon. That's why monsoon is so research subject in the world. So research subject in the world. बात समझ में आए क्यों ये चेंज कर रहा है? Now come to the point. The first one. There are many theories which deals with the origin of the what? Monsoon.
The first one is traditional theory. Okay? परंपरागत सिद्धांत, traditional theory. It says that monsoon is the result of differential heating and cooling of land mass and water body. Monsoon is the result of differential heating and cooling of land mass and water body. As I told you, why monsoon is so unique, so peculiar, since its direction is changing. तो ट्रेडिशनल थ्योरी, बाबा आदम थ्योरी, परंपरागत थ्योरी, हैली थ्योरी, अल मसूदी थ्योरी, राइट, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सिद्धि अली थ्योरी, ये बोल रहे हैं कि मानसून क्यों आता है रे बाबा, तो मानसून इसलिए आता है कि लैंड अलग रेट से गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, वाटर अलग रेट से गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है. अब जरा सा देखो, गौर करना कि दिस डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ land mass and water body result into the formation of monsoonal winds. This is all about traditional theory, बाबा आदम सिद्धांत. मानसून कैसे आता है, तो मानसून इज द रिजल्ट ऑफ, क्या बोलोगे, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी. वाटर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वाटर के. लैंड, यही स्टेटमेंट था इस बार, था यूपीएससी का पेपर देखा आपने प्रीलिम्स का, इस बार सेम स्टेटमेंट जो हमने बोला, यही क्वेश्चन था, हर साल पूछता है. अब देखो, ये लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है. तो दिन के 10 बजे भैया ये बिना स्लीपर के चल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा गर्मी हो गया. कहाँ पे, लैंड पे. और एट द सेम टाइम पानी क्या है, अभी भी थोड़ा इसके कंपैरिजन में ठंडी है, स्पेसिफिक हीट उसका ज़्यादा होता है, उसको टेम्परेचर को राइज करने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ये जल्दी हो जाता है ठंडा, जल्दी गर्म होता है. ये क्या होता है, लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा होता है. ठीक, तो ये अभी भी वाटर क्या है, ठंडा है, और लैंड गर्म. नाउ ठंडी होने के कारण कैसा प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, हाई प्रेशर. और लैंड पर तो हवा किधर से किधर मूव करेगा, हाई टू लो. ये बात समझ में आई, इतनी छोटी सी बेसिक बात. अब जरा देखो, सो मानसून इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, मानसून इज द रिजल्ट ऑफ, बोलो, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी. डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी. लैंड अलग रेट से गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और वाटर अलग रेट से गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है. देखो जरा सा, क्लियर. कहने का मतलब, लास्ट ईयर यहाँ तेलंगाना में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अभी भी है. एक लेडी ने अपने छत के ऊपर ऑमलेट फ्राई कर दिया था. पूरी इतनी हीट जो है, अभी भी कितने हीट वेव्स चल रहे हैं इधर नॉर्थ इंडिया में. देखो उधर दिल्ली में परसों इतनी गर्मी थी, आज भी देखो पटना में बात हुई, बोलने कि 47 डिग्री के आसपास है, इतनी गर्मी है इधर. सुबह में मॉर्निंग में मेरी बात हुई, बात समझ रहे, दिल्ली में इतना. तो अब जरा देखो, ये सारा गर्म है, तो गर्म होने की वजह से यहाँ कैसा प्रेशर होगा बताना, लो. हवा ऊपर उठ गई, मैदान खाली. तो दिस हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, स्पेशली इन द वेस्टर्न राजस्थान रीजन. क्लियर. बालू है ना, सैंड है ना, रेता है, तो कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर. पूरे इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में चारों तरफ ये गर्मी है, बट कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी, किस वजह से, सैंड वगैरह के कारण. एनीवे, सो दिस हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, low pressure. In comparison to this, the nearby water body, this surrounding water mass, surrounding water area like Arabian Sea and Bay of Bengal having high pressure, ठंडा है comparatively. तो इधर कैसा pressure हो गया, high pressure in सब areas. Now the wind tend to blow from high pressure areas to low pressure areas. एक ग्रेडियंट बन गया, नेचुरल ढाल बन गया. सो देखो, नाउ विंड ट्राई टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू वेयर, लो प्रेशर एरिया. बहना शुरू हुआ विंड. अब देखो,
क्लियर? ये फर्स्ट ग्रुप है। इस फर्स्ट विंड को क्या नाम दिया हमने? गुजरात ब्रांच ऑफ विंड, गुजरात ब्रांच ऑफ विंड्स। ठीक है? दीज मॉइस्चर लेडन विंड, ये आर्द्रताग्राही पवने हैं। दीज मॉइस्चर लेडन विंड दे आर जस्ट कैरिंग 20 बकेट्स ऑफ वाटर। ये 20 बाल्टी पानी ले लिया और किधर इंटर कर रहा है? ओशियन से किधर आ रहा है? पूरा का पूरा बाल्टी का बाल्टी पानी लेके आ रहा है। ठीक है? किशमिश से किशमिश को पानी में डाल दें तो कैसा हो जाएगा? वो फुल है। तो एग्जैक्टली ये ड्राई विंड था। कैसा है? अब मॉइस्चर विंड है। कहाँ से आ रहा है? मॉइस्चर क्यों है? ओशियन के सरफेस से आ रहा, पूरी उसके अंदर माल भरी पड़ी है और लेके आया, बाल्टी के बाल्टी पानी लेके आया। नाउ अब यहाँ गौर करना, किधर से इंटर कर रहा है ये? गुजरात स्टेट से। तो इसका नाम क्या है? गुजरात ब्रांच। क्लियर? अब जरा देखो असल टेंशन यहाँ पे। इन एब्सेंस ऑफ एनी ओरोग्राफिक बैरियर, एनी relief barrier, relief means mountain, plateau, oro means mountain. In absence of any orographic barrier or relief barrier, there is little or no rainfall in this region. अगर खुदा ना खास्ते ये अरावली नॉर्थ साउथ ऐसे के बजाय ऐसे होता, अगर अरावली, तो नन स्टॉप झमाझम बारिश होता सालों भर। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि गुजरात में, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? तो उसका सबसे सिंपल और सरल बेसिक रीजन क्या है कि दीज विंड्स आर, गुजरात ब्रांच ऑफ विंड आर पैरेलल टू होम? अरावली। इसलिए इधर को कोई बारिश नहीं होती। इतना समझ है? यही ऑप्शन होता है एग्जाम में। 3-4 तरह के ऑप्शन देंगे, ये मॉइस्चर, वो मॉइस्चर, इसे उसी में फंस जाओगे तुम लोग। सिंपलेस्ट थिंग क्या चीज हम बता रहे हैं कि ये विंड, इसको ब्लॉक करने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है, ये इसके पैरेलल निकल गया, इस कारण से इधर बारिश नहीं होती। बराबर? अब फाइनली ये विंड जाके कहाँ टकराएगी भैया? ये सब पढ़ोगे आगे आप रेगुलर कोर्स में। देखो ये सब क्या कहलाता है? ये सब हिमालय है ना? बात समझ पा रहे हैं? यही नहीं हिमालय अपना? क्या जी? ऑलमोस्ट रनिंग थ्रू 5 स्टेट, अब 6 स्टेट हो गया है ना? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम है, अरुणाचल। एंड दिस इज व्हाट? अराकानियोमा माउंटेन। सब पढ़ोगे आगे ये सब माउंटेन वगैरह के बारे में, है ना? तो देखिए अब फाइनली ये विंड जाके किससे टकराएगा? हिमालय। अच्छा यहाँ कौन सा स्टेट है? विजिबिलिटी पीछे दिख पा रहा है आप लोग को? पीछे ये कौन सा स्टेट है बाबू? पंजाब। और नीचे ये हरियाणा। तो यहाँ जाके टकराया तो क्या इधर को बारिश होगा? यस और नो? नो। क्यों? यहां से यहां डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या हो गया? वो उड़ गया। कौन उड़ गया? ठीक है? These moisture laden winds, since they are entering from which side? Gujarat side, they are known as Gujarat branch. These winds are almost parallel to whom? Aravalli mountain. So in absence of any mountain barrier, orographic barrier, there is little or no rainfall in this region. So any part of the world which receives less than 25 centimeter of rainfall in a year is known as desert. संसार का वैसा कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, क्या बोलते हैं उसको? डेजर्ट। ज्योग्राफी में उसको डेजर्ट कहता है। आम आदमी क्या समझता है? डेजर्ट मतलब बालू, रेता, बदरपुर, सैंड। सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है। ज्योग्राफी में डेजर्ट किसको बोलते हैं? एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव्स less than 25 centimeter of rainfall is referred as desert. So this is Great Indian Desert extended in India and Pakistan. तो इंडिया वाले साइड को क्या बोलते हैं? थार। कल ढूंढ के लाना पाकिस्तान वाले साइड को क्या बोलते हैं। हम लोग इसको थार बुलाते हैं, थार। ये लोग क्या बुलाते हैं? तो कल देखना गूगल करके, है ना, बता देंगे हम। ये चीज़ समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो यहाँ क्यों नहीं बारिश हुई गुजरात में, राजस्थान में? रीजन समझ में आया?
दूसरा देखिए, अब लोगों को ये डाउट रहता है कि सर यहाँ जाके पंचकुला में इधर बारिश करेगा, मोहाली में, चंडीगढ़ में? ना जी भैया, ना ना, बिल्कुल ना करेगा। क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा। और ये किसके सरफेस के ऊपर, किसके मुंडी के ऊपर से ब्लो करता हुआ आ रहा है? कोल्ड एरिया है कि वार्म एरिया है? इसके मुंडी के ऊपर से, इतना वार्म सरफेस के ऊपर से आ रहा है, तो क्या हो गया? वो इवापोरेट हो गया। अच्छा, कभी ट्रक ड्राइवर लोग को नोटिस किया हो? बेचारा वो अपना गमछा उमछा कुछ कपड़ा वपड़ा आगे बांध देता हो, हैंडल में वो मिरर वगैरह बांध देते हैं ना, भींगा हुआ कपड़ा, और ट्रक जा रही है आगे, गाड़ी जा रही है, तो क्या होता जाता है? उसका गमछा जो है सूख जाएगा ना। क्यों सूख जाता है? इवापोरेट कर गया। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये हवा ये वार्म सरफेस के ऊपर से ब्लो कर रही है। सिंस दिस मॉइस्चर लेडन विंड pass on through whom? Warm areas, warm surfaces. That's why it do not bring any rainfall. Here the distance is more. यहाँ बैरियर तो मिला हिमालय, लेकिन दूरी, सारा माल किधर चला गया? इवापोरेट कर गया। समझ में आया? आगे बढ़े। ये था मानसून का पहला गुजरात ब्रांच। क्लियर है? नाउ second branch, it enters from here, Arabian Sea side, इधर से आ रहा। अब देखो ये सारे कैसे हैं? इधर ओशियन हाई प्रेशर, और इधर किधर है? विंड झपटेगा लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो एक तो सीधा चला गया, क्या नाम दे दिया उसको? गुजरात ब्रांच। सेकेंड वन इज अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। नाउ अब जरा देखो, अरेबियन सी ब्रांच आया तो जरूर, बट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल, शायद आपको मालूम हो ये कौन सा माउंटेन है? वेस्टर्न घाट। ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर, ऑलमोस्ट एक्सटेंडिंग इन 6 स्टेट, जस्ट लाइक हिमालय। ये देखो पूरा सदर्न गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये पूरा यहाँ तक, ओके, वेस्ट कोस्ट के पैरेलल। अब जरा देखो बोर्ड पे देखिए, तो विंड, कौन सा विंड? अरेबियन सी ब्रांच ऑफ विंड स्टार्ट हुआ यहाँ से, चला आया तो वेस्टर्न कोस्ट के, ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में इधर को खूब बारिश किया भैया। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ विंड, they bring rainfall in the western part of the western coast of India, around 200 to 300 centimeter. Windward means the part of the mountain which faces the winds, जो सामना कर रहा पहली बार विंड को आके। अब इस कमरे का विंडवार्ड साइड कौन सा होगा? अरे विंड किधर से घुसने का चांस है? इधर, वही तो गेट है, तो क्या बोलेंगे उसको? विंडवार्ड। जिधर से निकल गया पिछाड़ा, लीवार्ड, ली मतलब पिछाड़ा, तो माउंटेन के सामने वाला हिस्सा विंडवार्ड, पीछे लीवार्ड। तो ये विंड आया, आके देखो गुजरात, कोस्टल महाराष्ट्र, कोस्टल गोवा, कोस्टल कर्नाटक, कोस्टल केरल, इट ब्रिंग्स अराउंड 200 to 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इधर खूब बारिश किया। द विंड, ठीक है, इट क्लाइम्स अपवर्ड हेयर विद द अलोंग विद द स्लोप ऑफ होम। किसके स्लोप के सहारे सहारे? वेस्टर्न घाट माउंटेन के स्लोप के सहारे सहारे हवा ऊपर उठी, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन बोले तो बारिश हुआ, बादल हुई, एंड जैसे ही विंड नीचे उतरता है, ठीक है, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट विलीन हो गई वायुमंडल में, इट रिलीजेस द लेटेंट हीट, ठीक है, गुप्त उष्मा आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या हो गया? डिसिपेट कर गया, उसकी टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, नीचे आते आते वो गर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर पता चला कि टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो नीचे तक आते आते पता चला कि हो गया ये 27 डिग्री। एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए। जैसे जैसे नीचे आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग, हेयर इट बिकम वार्मर। तो यहाँ पे तो बारिश किया। बताओ अब आप लोग
please tell me what are the important cities here which receives around 200 to 300 centimeter? बोलो कॉमन सेंस से, ज्योग्राफी को गोली मारो, ऐसे बताओ ना जनरल नॉलेज। मुंबई, भगवान का लाख लाख शुक्र है भैया, मुंबई में बारिश हुई। और बोलो गोवा, वेरी गुड। न्यू मैंगलोर नाम सुना है? उडुपी नाम सुना है? मणिकरण, ये क्या नाम है आपका, एक बड़ा मणिपाल इंस्टीट्यूट है उधर, नाम सुना है? इधर आओ, कोची, तिरुवनंतपुरम। तो इन सब एरियाज में कितना रेनफॉल होगा? 200 to 300 सेंटीमीटर। क्लियर? महाबलेश्वर नाम सुने? किधर को पड़ेगा महाबलेश्वर? इधर, हाँ इधर ही है ना कहीं, समवेयर। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ऑल दिस एरिया रिसीव्स अराउंड 200 to 300 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, as soon as this wind crosses the Western Ghat mountain due to adiabatic processes, they become warmer, they loosen their moisture, latent heat is dissipated, latent heat is just dissipated in the nearby surrounding atmosphere। बात समझ पा रहे हो? अब विंड इस तरफ आया, अब बोलो the amount and intensity of rainfall will increase or decrease? Decrease। इधर ज्यादा बारिश होगी इस तरफ तो विंडवार्ड, इधर क्या बोलेंगे? लीवार्ड। दिस इज लीवार्ड साइड। और रेन शैडो रीजन और स्टेपी रीजन, कई नाम है इसके, इस पूरे रीजन के। क्या बोलते हैं? लीवार्ड साइड ऑफ इंडिया, लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिम भाग, पिछला हिस्सा किसका? वेस्टर्न घाट का। और रेन शैडो रीजन, सेकंड नाम क्या है इसका? रेन शैडो रीजन, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है? स्टेपी रीजन ऑफ इंडिया। तो दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव्स लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर इज नोन एज रेन शैडो और स्टेपी रीजन। बात समझ में आई? पल्ले पड़ा? कौन कौन सा एरिया आएगा बोलो तो रफली? इट विल कॉरस्पॉन्ड टू विच रीजन, विच स्टेट? महाराष्ट्र, इनर महाराष्ट्र, बिहार है इसमें? पक्का नहीं? बोलो क्या? तेल लगाना नहीं, तेलंगाना है ना? यस। और दूसरा इनर कर्नाटक, बोला है तेल लगाना, मतलब तेल लगाना नहीं, तेलंगाना, कर्नाटका, देन इनर तमिलनाडु। सो इन सब एरियाज में कितना बारिश होगा? 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? पल्ले पड़ा? चलो, तो गुजरात ब्रांच का मैकेनिज्म क्लियर है, अरेबियन सी ब्रांच मैकेनिज्म क्लियर, क्लियर। अब जरा देखो, थर्ड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ विंड। थर्ड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ विंड। अब जरा देखो, these winds are almost parallel to eastern coast of India. These winds are almost parallel to whom? Eastern coast of India. बोलो ये कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु, देन आंध्रा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट. So this one, Bay of Bengal branch of winds, these are almost to eastern coast of India. The same principle is applied here. In absence of any relief feature, in absence of any mountain, these winds almost blow to the eastern coast of India, Coromandel coast, North Sarkar coast. ओके, क्या यहाँ बारिश होगी? मॉनसून कब आता है इंडिया में? जून, जुलाई, अगस्त. तो क्या जून, जुलाई, अगस्त में इधर को बारिश होगा? जून, जुलाई, अगस्त में कौन सा सीजन होता है? सर्दी की, गर्मी? इसमें भी सोचना पड़ेगा, मतलब सर्दी या गर्मी? गर्मी. तो गर्मी में इधर बारिश हो रही है? यस और नो? यस और नो? नो. क्यों नहीं बारिश हो रही गर्मी में इधर? पैरेलल है. कौन सा विंड? बे ऑफ बंगाल ऑफ विंड. ये बांग्लादेश के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं. हाँ, जो दोज पार्ट ऑफ द लैंड विच इज
प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द सी। अब जैसे देखो पूरी थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, थोड़ा सा ये गोदावरी आपका डेल्टा थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। प्रोट्रूडिंग मतलब पार्ट ऑफ द लैंड प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सी। दीज हैव जस्ट प्रोट्रूडिंग लैंड मासेस, प्रोट्रूडिंग लैंड मास थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ। तो विंड थोड़ा बहुत पूरी में बारिश होगा समर में भी, थोड़ा बहुत गोदावरी डेल्टा पे भी समर में हो जाएगा, बाकी जनरल बारिश वहां नहीं होगी। यस और नो, क्लियर है? अब देखो, इट इज पासिंग ओवर द बांग्लादेश, क्लियर? अब आओ यहाँ चटगांव वगैरह सिलहट वगैरह बारिश हुआ। अब जरा देखो, नाउ these winds are trapped in the funnel shaped structure of Garo, Khasi, Jaintia hills. These local hills, these mountains have, ठीक है, funnel shaped structure, okay? So these Bay of Bengal branch of winds are trapped inside the funnel shaped structure of whom? Garo, Khasi, Jaintia hills. ये गया पूरी की पूरी बाल्टी के बाल्टी पानी लेके, अब वो जाके उसमें फंस गया। उसकी आकृति कैसी है? The shape of this Garo, Khasi, Jaintia hills have funnel shaped structure, okay? सर्कस में एक देखा है मौत का कुआं, क्या होता है मौत का कुआं में? बाइक वाला उसमें घूमता है ना गोल गोल, ठीक है? तो सेम इसी तरह से ये मौत का कुआं है। ये तीन गारो, खासी, जयंतिया, विंड आया, ये फंस गया उसमें, ठीक है? अब देखो नाचना शुरू किया उसके चारों तरफ, ठीक है? बात समझ में आए? देख तो ट्रक वगैरह के पीछे उधर इधर लिखा रहता है ट्रक वगैरह, बहुत सारे कॉमन एक लाइन लिखे, लटकले तो गईले बेटा, मतलब लटकला तो गईला बेटा, मतलब समथिंग स्लोगन एक लिखा होता है ट्रक वगैरह के पीछे। तो सेम मैनर में वो लटकला तो गईला बेटा मीन्स व्हाट? वो जाके क्या हो गया उसमें? विंड फंस गया, किसमें? गारो, खासी, जयंतिया हिल्स में। अब बिरनी की तरह नाचना शुरू किया। स्लोप है ना, तीन माउंटेन, एक पहला माउंटेन का स्लोप, दूसरा माउंटेन का स्लोप, तीसरा माउंटेन, जस्ट लाइक अंधा कुआं सर्कस का। विंड जाके गोल गोल घूमना शुरू किया, इधर देखो घूमना शुरू किया। एज सुन एज द विंड राइजेज अपवर्ड, ऊपर उठा, कंडेंसेशन टेक प्लेस, बादल बना, बारिश। कंडेंसेशन मतलब बादल, ठीक है? कंडेंसेशन बना, बादल हुआ, बारिश हुई, क्लियर? नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। ये चेन रिएक्शन शुरू होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले एक विंड ग्रुप गया, जाके अंदर फंस गया, हवा बना, बादल बना, बारिश हुई, पीछे से फिर सेकंड ब्रांच आ गया, फिर थर्ड ब्रांच आ गया, रेला लग गया, एकदम रेला लग गया, मतलब चेन रिएक्शन शुरू हो गया। बात समझ में? द फर्स्ट स्ट्रीम इज फॉलोड बाय सेकंड स्ट्रीम, थर्ड स्ट्रीम, फोर्थ स्ट्रीम, ये निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। दैट्स वाई दिस प्लेसेस गारो, खासी, जयंतिया, द एरिया लाइंग साउथ ऑफ गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, दे रिसीव्स रेनफॉल अराउंड 1200 सेंटीमीटर इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, क्लियर? जिसे पहले होता था एक चेरापूंजी, यहीं पर है देखो बाजू में, जस्ट इसी के बाजू में चेरापूंजी का मौसिन राम, क्लियर? चेरापूंजी एंड मौसिन राम। आगे जब भी कोई प्लेस होगा तो इसी आसपास होगा, जवई, बाघमारा, फिर से या तो चेरापूंजी हो जाए, हो सकता है आपको तैयारी करते करते चेरापूंजी फिर से हो जाए, या हो सकता है जवई हो जाए। तो इसमें घबराने के बाद, जो नहीं जीएस पढ़ा ठीक से नहीं समझे तो उसके लिए बहुत भारी फैक्ट है। हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया जवई, हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया बाघमारा, आपके लिए तो हंसी खुशी में उड़ा दोगे। अरे कोई भी प्लेस होगा ना हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड का, वो यहीं का होगा, चाहे वो चेरापूंजी हो, चाहे मौसिन राम हो, चाहे जवई हो, चाहे बाघमारा हो। कल को मान लो कि अगर चेंज हो भी जाता है तो कौन सा होगा? जो भी हो जाए, इसी में से कोई एक होगा, ठीक है? बातें समझ आ रही? पहले पढ़ रहा है। सो वाई दिस रीजन रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? ड्यू टू द शेप ऑफ द गारो, खासी, जयंतिया hills, okay? Now
रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब देखो रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मीन्स व्हाट, यहाँ देखो, यहाँ तो एक चलो एक टिपिकल एक यूनिक फिनोमेना है 1200 सेंटीमीटर, बाकी और भी तो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दीज स्टेट्स, अपर असम, लोअर असम, ये सब सारे रीजन, all the remaining northeastern states they receives rainfall around 200 to 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना बारिश था 200 to 300 सेंटीमीटर, इधर कितना रेनफॉल है 200 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्लियर? अब जरा देखो, नाउ दीज विंड्स आर अनेबल टू क्रॉस द हिमालय। ये कौन सा माउंटेन है इधर, तो ये इसको जंप करके चाइना जाएगा घूमने? नहीं, ये मॉनसूनल विंड चाइना जा पाया? ये क्या म्यांमार जाएगा? बोलो कौन सा माउंटेन है? तो चाइना जा नहीं सकता, इधर को म्यांमार आ नहीं सकता, वापस चल भैया समुंदर में, कभी हो सकता है? एक बार अंदर घुस गया, पेनिट्रेट कर गया, ठीक है, बारिश हो गया 2-4 राउंड, नाउ दीज विंड्स कैनॉट क्रॉस द हिमालय, cannot go towards the Myanmar due to orographic barrier, mountainous barrier। तो क्या ये वापस रिटर्न होकर समुद्र में आएगा, बैक मारेगा? क्यों? प्रेशर डिफरेंस है, वेरी गुड। इधर हाई प्रेशर है, उधर प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब ग्रेडियंट, मतलब ढाल, इधर हवा ज्यादा है, उधर ढाल ज्यादा है, स्लोप ऐसा है ना, उल्टा जाएगा? नहीं, तो विंड इधर जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता, वापस समुद्र में आ नहीं सकता। अब जरा देखो कलाकारी, नाउ वंस अगेन कम टू दिस रीजन, अर्लियर दिस रीजन हैज नॉट रिसीव्ड रेनफॉल प्रॉपरली, अच्छे से बारिश नहीं मिला है, अभी भी प्यासा है, और while this region has received rainfall once, twice, thrice, एक आध राउंड बारिश हो चुका है, धरती मैया थोड़ी ठंडा गई, इधर still this portion, this region has not yet received rainfall, अभी भी गर्म है, तो कैसा प्रेशर होगा इधर और इधर? Now these winds are deflected towards western part of India, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा ये? यूं डिफ्लेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बातें आप लोग? एंड अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम, बोलो, अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? समझ आई मेरी बात? इतनी पल्ले पड़ा? इसी को बोलते हैं चैनलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? चैनलिंग इफेक्ट। ये बहुत पावरफुल सकिंग होता है, यहाँ पे बहुत पावरफुल सक करता है विंड। एक वैक्यूम प्रेशर होता है ना, वो क्लीन करने वाला, एकदम चारों तरफ से खींच रहा है। बारिश हुई नहीं है, गर्मी है, लो प्रेशर है। यहाँ दिस रीजन हैज ऑलरेडी रिसीव्ड रेनफॉल, चाइना जा नहीं सकता, म्यांमार जा नहीं सकता, वापस आ नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना। सो दीज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी भी लो प्रेशर खींच रहा है, सक कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से 20 बाल्टी पानी लेके इंटर किया था, 10 बाल्टी 12 बाल्टी तो इधर ही गिरा दिया, ले भैया, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे दार्जिलिंग अच्छा खासा है, कोलकाता अराउंड 150, पटना 108 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 100 सेंटीमीटर, आगरा 75 सेंटीमीटर, दिल्ली जस्ट 7 सेंटीमीटर, ओनली 7, SEVEN 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एंड देन हिसार, अमृतसर। तो ये क्या होता जा रहा है? धीरे 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 क्वांटम उसका रेनफॉल का कम होता चला है। ये समझ आया? मेरी बातें पल्ले पड़ी? तो ये रेनफॉल पैटर्न अकॉर्डिंग टू whom?
traditional theory. So how does monsoon occur in India? Monsoon is the result of differential heating and cooling of land mass and water body. Now one more thing is here. Usually always asked in prelims examination in JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़, MPSC, अब पूछता है कि झारखंड में छत्तीसगढ़ के कुछ पोर्शंस में इधर मानसून के किस ब्रांच से बारिश होती है. दिस पोर्शन ऑफ दिस रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ मानसून. तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक इट इज सिंस इट इज नियरर टू होम बे ऑफ बंगाल, तो क्या करेगा पब्लिक, इधर से इसको इसे घुसा देगा, इसे टपा देगा, इधर से टपा के बारिश कर देगा. ठीक है, ये कंप्लीटली रॉन्ग. कॉमन सेंस से तो लग रहा है हमको भी, ये बाजू में है तो चलो घुस जा, तो इधर भी तो घुस जाता, इधर क्यों नहीं घुसा, इधर क्यों नहीं घुसा, तो ये रॉन्ग है. गुजरात ब्रांच से क्या बारिश हो सकता है इधर? नहीं. बे ऑफ बंगाल ब्रांच से नहीं. तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? So Jharkhand branch, Jharkhand region, some portions of Chhattisgarh, Bundelkhand, this region, they receives rainfall from Arabian Sea branch of monsoon. Here there are certain passes, certain ghats in the Western Ghat mountain, certain passes like we have Thal Ghat Darra, Bhor Ghat Darra, Thal Ghat Darra, Pal Ghat Darra, Shenkota, Katarnia Ghat, numerous passes there. So Arabian Sea branch of winds, they penetrate, they enter much inside the continent, much inside the land with the help of these passes, and all those areas situated in the same line of collimation, they will receive rainfall. क्लियर. इधर भी माउंटेन है, इसको ब्लॉक कर रहा है, जैसे विंध्या, सतपुरा, इधर मैकाला वगैरह कन्फाइंड है, रिफ्ट वैली है ना. इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, बीच में घुस गया एक बार विंड. कौन सा विंड? अरेबियन सी. उसी से यहाँ पे बारिश होती है. तो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड पोर्शन ऑफ इंडिया, इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द, ये लॉजिक मत लगाना कि नज़दीक है इधर, तो उस लॉजिक पे तो इधर भी बारिश होना चाहिए समर में, उस लॉजिक पे तो इधर भी बारिश होना चाहिए. बात पल्ले पड़ा और क्लियर है. तो ये कुल मिला करके मॉनसून का मैकेनिज्म. क्लियर. अब देखो, तो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहता है कि लैंड रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल, मॉनसून इज द रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ व्हाट, होम. किसका रिजल्ट है ये? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी. लैंड मास अलग रेट से गर्म हो रहा है, ठंडा होता है, और वाटर बॉडी अलग रेट से गर्म हो रही है, ठंडा हो रहा है. इतने सालों के बाद सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल भी यही है, हमको भी यही अच्छा लगता है. पर्सनली मुझे सबसे अच्छा यही थ्योरी लगता है, पढ़ाने में भी और खुद के लिए भी, समझने में भी. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे ओपिनियन है. ठीक है. क्लियर. ये आगे बढ़ें. चलो अब मेरे सवालों का जवाब दो, दो चार तुम लोग जरा सा. अब बोलो तो आप लोग जरा. ठीक है, पूछो. मे आई आस्क सम क्वेश्चन? पक्का. चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है जो आए हुए हैं. मेरे सारे क्वेश्चन या तो कहीं ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, या तो CDS हो, या तो NDA हो, या तो IAS हो, या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या तो आने वाले हैं. इसके अलावा फालतू चीज़ मुझे कुछ आता ही नहीं, बस इतना ही. ठीक है. अब बताइए, पीछे दोनों लोग मिलके बताओ तो. इधर 3 ब्रांचेज पढ़ा ना. अब मेरे को ये बताओ कि सबसे ज़्यादा बारिश किस वाले ब्रांच से हो रही तुम लोग के अकॉर्डिंग? Which branch of monsoonal wind, Gujarat branch or Arabian Sea branch or Bay of Bengal branch, provides maximum rainfall in India? बोलने दो, सबको मौका आएगा. बे ऑफ बंगाल. पीछे इसने बोला इसलिए. हाँ, बोलिए मैडम. बे ऑफ बंगाल क्यों?
अरे बोलो ना भाई, इतना बड़ा ये एरिया कवर कर रहा है पूरा, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ये पूरा था, सबसे ज्यादा एरिया कवर कर, सबसे ज्यादा दुनिया में रेनफॉल हो रही किस ब्रांच ऑफ मानसून से? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो सेकेंड लास्ट रो, यूपी, बिहार, दिल्ली, इवन गंगा प्लेन रीजन, यही क्वेश्चन था। गंगा प्लेन रीजन मोस्टली रिसीव रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ मानसून? बोलो जोर से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? चलो इधर से बता दो एक आदमी कोई। ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लास्ट ईयर का, यूपीपीसीएस का। ओके, लास्ट के लास्ट ईयर से क्या कह रहा है कि बोथ गुजरात ब्रांच ऑफ विंड एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ विंड, both these group of wind, they merge, they meet with each other in which state of India approximately? सोचो, गुजरात की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दोनों तुम लोग के मुताबिक किस राज्य में मिलना चाहिए? किधर मिल रहा है? बोलो, कुछ भी हिंट दो। राजस्थान और एनीबडी? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। समझ पा रहे हो? देखो उसको, इमेज को। ये कौन सा ब्रांच था? इधर आया ना? ओके, और ये कौन सा ब्रांच है? इधर है ना? ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, यही ना इलाका। ऑप्शन क्या था एग्जाम में? क्वेश्चन ये था कि बोथ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ विंड एंड गुजरात ब्रांच ऑफ विंड, दे मीट इन द ईस्ट ऑफ अरावली और इन द वेस्ट ऑफ अरावली। अरावली माउंटेन है ऐसे रेड वाला, तो अरावली के पूरब में मिलता है कि अरावली के पश्चिम में? किधर मिलता है ये? पश्चिम में। हो गया क्लियर? समझ में आई मेरी बातें? शरीर आत्मा ही है, पक्का? चलो तुम लोग बताओ ये इमेज देख के कि मॉनसून से कहां कहां रेनफॉल नहीं हुआ? ये तो हो ही रहा है लिटिल बिट। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे आर गेटिंग रेनफॉल फ्रॉम मॉनसून, एक्सेप्ट दिस रीजन। ये हर जगह हो रहा है थोड़ा बहुत, चाहे 2 बूंद ही बारिश हो, चाहे 25 सेंटीमीटर हो। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया रिसीविंग रेनफॉल फ्रॉम मॉनसून। मॉनसून पूरे भारत को एक रंग में रंग दिया। मॉनसून यूनिटी इन डाइवर्सिटी का काम करता है। कैसे? ये गरीब का घर है जी, बट नहीं बारिश करेंगे। ये अंबानी साहब का घर है, झमाझम, ऐसा करता है मॉनसून। चाहे अमीर का घर हो, चाहे गरीब का घर हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तमिलनाडु। समझ पा रहे हैं? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का काम कर रहा है। सावन का नाम सुने हो? सावन, अब देखना, एक अलग ही समा होता है सावन में, हर जगह एक अलग ही खुमारी होता है सावन। और बाकी दुनिया में इतने सारे कंट्री हैं, आप गौर करना, नोटिस करना, इस बार के सावन एक अलग ही मतलब खुमारी होता है। किसमें? वायुमंडल में। नोटिस करना, आप देखें एक अलग ही आबो हवा होती है। सीरियसली आप घूम लो पूरी दुनिया, ठीक है, चले जाओ पूरा एकदम उधर, क्या बोलते हैं, ये देखो किधर भी चले जा रहे भैया, यूएसए से लेके पूरा इधर थाईलैंड तक, है ना, कहीं चले जाओ, इधर चिली से लेके एकदम रशिया तक, ऑस्ट्रेलिया तक। क्लियर? So nowhere in the world you will get such a phenomenal experience related to monsoon. ठीक है? पूरी एक इंडिया की एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? अमीर गरीब सबके घर में बारिश कर रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु सबके इधर बारिश कर रहा है थोड़ा बहुत। और हमारे कल्चर को क्या कर रहा है? मॉनसून इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है? लोग किसान तो इंतजार करते हैं, आएगा अब मॉनसून आएगा, अब हम खेत में जाएंगे, अब चावल लगाएंगे, चावल मतलब धान। समझ में आया?
ये देखो रेनफॉल पैटर्न इंडिया का बताया ना हमने, 100 centimeter rainfall line in India. It almost divide India into two agricultural zone. This region of India receives rainfall more than 200 to 300 meter, 200 to 300 centimeter, then up to 100 centimeter, और इधर लेस देन 75 सेंटीमीटर. इनकी तो एक अलग कहानी थी, चलो ये तो माउंटेनियस रीजन है ना, और इधर थोड़ा सा एक अलग कहानी है, 200 to 300 centimeter. So this is 100 centimeter rainfall, 100 centimeter of ISO height. ISO means equal, HYTES, heights मतलब rainfall line. This is 100 centimeter rainfall रेखा. Okay, all these area receives rainfall more than 100 सेंटीमीटर. ये 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही, इधर लेस देन 100 सेंटीमीटर. अब जा देखो बोर्ड पे, एग्रीकल्चर फूडिंग पैटर्न. देयर फर्स्ट प्रेफरेंस क्रॉप विल बी राइस. बात समझ में आई? चावल, चावल खाना, चावल उगाना पसंद करेगा. ठीक है, इंतजार करता है मॉनसून का, बारिश होगा, किसान खेत में जाता है. इधर लेस देन 100 सेंटीमीटर, तो मोटे अनाज जिस 100 सेंटीमीटर जिसको बारिश कम चाहिए, वेट किधर होगा? वेट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एमपी. ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ये सब एरियाज हैं. समझ पा रहे हो? तो राइस डोमिनेटेड, व्हीट डोमिनेटेड. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? तो मॉनसून क्या काम करता है? इट एक्ट्स लाइक यूनिटी इन. बहुत डाइवर्स कंट्री है अपना राष्ट्र, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी. वी हैव अराउंड 600 डायलेक्ट्स, अराउंड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज. एक और जोड़ लो, 23वां भोजपुरी हो सकता है. अगला, संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में. 23वां इलेक्शन के टाइम नेक्स्ट 8 क्या हो सकता है? भोजपुरी. सो वी हैव अराउंड मोर देन 600 डायलेक्ट्स. ठीक है, हिंदी में भी कई वेरिएशन, इंग्लिश में भी कई वेरिएशन. बात समझ में आई? तो मॉनसून क्या काम करता है? ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का काम करता है. क्लियर है? समझ में आई मेरी बातें? पल्ले पड़ा? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज? हाँ बोलो. Cause of direction of these winds. So in broader context, as I told you here, देखो, how many permanent winds we have on the globe? Below, the first one is polar wind, then and the third one is, these winds move from high pressure to, so these wind would have been like to this one state, but under the influence of whom? Coriolis force. They take right hand turn. इसी से रिलेटेड है. यहाँ समझ जाए ये क्यों राइट हुआ? समझ आया? Why it takes right hand turn? समझ आया? क्लियर? नाउ अब जरा देखो. So there are many opinions regarding the origin of monsoons in India, right? As I told you, the first one was traditional theory of whom? Traditional theory of Halley, and most of the Arabian scholars, what they say? Monsoon is the result of what? Differential heating and cooling of land mass and water body, right? Now, so as I told you, I'm just going to brief, I'm going to repeat this one. The first branch was
Gujarat branch of wind. These are parallel to whom? Aravalli. So in absence of any orographic barrier, there is little or no rainfall. The second branch was Arabian Sea branch. They first strike with the whom? Western Ghat mountain. So they first strike with whom? Western Ghat mountain, and they bring heavy rainfall in the west of Western Ghat. As soon as they crosses the Western Ghat mountain, here this is a steppe region or rain shadow region or semi-arid region. How much rainfall is there? Around 75 centimeter. And the third one is Bay of Bengal branch of wind. These are parallel to whom? Eastern coast of India, and they are trapped inside the funnel shaped structure of Garo Khasi Jaintia hills. As soon as they try to rise upward, rapid condensation take place and huge rainfall occur here south of Garo Khasi Jaintia hills. Mausin Ram is the wettest place of the world. How much rainfall it receives? Around 1200 centimeter. And the rest of the northeastern states receives rainfall how much? 200 to 300 centimeters. Since these winds are unable to cross the China, unable to go towards the Myanmar, so still low pressure is here. So these winds are pulled towards whom? Northwestern part of India. Clear था यहाँ तक? कोई दिक्कत? Now, अब जरा देखो. This traditional theory has three important unexplained phenomena, unexplained queries, unexplained question. कौन कौन सा? देखो, traditional theory is unable to discuss why sudden onset of monsoon take place. Monsoon normally take place in India on 1st of June. So why this phenomena take place? This sudden onset of monsoon is referred as monsoon burst at Kerala coast. So why this sudden onset of monsoon take place? So traditional theory is unable to discuss this one. Second one, sometimes monsoon became fail or late. So why sometimes monsoon became fail or late? So this is unexplained by traditional theory. Are you getting? समझ पा रहे हो मेरी बातें आप? ये दो का आंसर नहीं मिला. तीसरा देखो, third one. The first one was why sudden onset of monsoon take place. Second, why sometimes monsoon become fail or late. Clear? And third one, why wet spell is followed by dry spell. Why wet spell is followed by whom? Dry spell. क्या मतलब इसका? जब मॉनसून आ गया, बटन दब गया, ट्रिगर हो गया, तो नॉन स्टॉप झमाझम बारिश होना चाहिए इंडिया में 3 महीने तक. ऐसा नहीं ना होता. मॉनसून आता है, 2 दिन बारिश होती, फिर ड्राई, फिर बारिश होता है, फिर 2 दिन शॉर्ट करे, फिर ड्राई. तो वेट स्पेल इज फॉलोड बाय ड्राई स्पेल. एवरी वेट स्पेल इज फॉलोड बाय ड्राई स्पेल. 2 दिन बारिश हुआ, फिर ड्राई हो गया, फिर बारिश हुआ, फिर ड्राई. यही होता है ना प्रक्रिया. All these answers, all these queries we will try to find out with the help of whom? Jet stream theory. Clear? Traditional theory clear to you? पक्का? आगे बढ़ें. तीसरा, अब इसमें क्या देखना है हमको? ये तीनों आंसर हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेट स्ट्रीम थ्योरी. चल देखो अब एक एक करके इन तीनों को ध्यान में रखना है. Always keep these 3 questions in mind. Just I am going to discuss one by one. Why sudden onset of monsoon take place? Why wet spell is followed by dry spell? And why sometimes monsoon become fail or delayed? Right? Let's see. अब देखो जरा सा. गौर करो भैया. Jet stream. Jet streams are actually upper atmosphere circulation of winds. They are having funnel shaped structure.
Okay, they always adopt a wavy path. Jet stream are narrow band of air, okay, circumnavigating the home globe. Let's say, as I told you, how many winds are there, permanent winds are there? 3. क्या नाम था इसका? This one was, and third one, why they are known as permanent winds? Since they blow throughout the year. Clear? Now, besides these 3 winds, there is one more permanent wind, and this is upper circulation, upper atmospheric wind. Okay, they blow, they circumnavigate around the globe from west to east, right? अब जरा देखो उसको क्या है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. देख, अर्थ, ओके, इक्वेटर कहाँ पड़ेगा बोलना? ये है ना ऑलमोस्ट. अपना इंडिया कहाँ है इस जगह पे? बात समझ पा रहे हो आप लोग मेरी? अब जरा देखो, ये पिंक कलर ले रहे हैं, चलो. तो कुछ यूं एक विंड है, अपर एटमॉस्फेयर. दिस विंड circumnavigate around the globe from west to east. Okay, since earth it rotate from where? West to east. These winds also rotate along with the velocity of the earth from home, west to east, having a wavy path. Having what? Wavy path. ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, एक तरह का विंड है धरती से ऊपर. So these winds, they are upper surface wind. Always keep in mind, these are upper surface wind. Like polar wind, westerly wind, these are surface wind, and this is upper surface wind. So these winds, they adopt wavy path. Okay, we will have some separate session on jet stream also. एक अलग से इस पे पूरी क्लास है 2 घंटे की. जस्ट इसको हम चूंकि मानसून आई हैव टू डिस्कस है तो एक थोड़ा सा सहारा ले रहे हैं, अदरवाइज 1-2 घंटे की अलग से सेशन है. अब देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, दे आर पुल टुवर्ड्स दे डाउनवर्ड, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ buoyancy, okay, they take upward path. So both gravity and force of buoyancy, both are antagonist force. Antagonist force means they act opposite to each other. So gravity pull this wind towards land, and force of buoyancy, it pull this wind upward. So there is great tussle between force of buoyancy and gravitational force. So that's why these winds, they adopt wavy path. So if someone asks why the jet stream, they adopt wavy path, due to the tussle between whom? Gravitational force and force of buoyancy. Okay, now since these winds are passing through, ये कहाँ से जा रहा है देखो भैया, अपने इंडिया की तरफ से जा रहा है. नहीं, मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग? पक्का? ये इंडिया से होके जा रहा है ना. अब जरा देखो, अभी फिलहाल के लिए जेट स्ट्रीम इतना हम समझते हैं. एक अलग से पूरी इस पर एक लेक्चर है 2 घंटे की, कैसे ओरिजिन होता है, क्या आता है. कई तरह के मिडनाइट जेट स्ट्रीम होते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम होते हैं, है ना, फिंडलेटर जेट है, क्रॉस इक्वेटोरियल जेट है, लोकल जेट्स हैं. अभी सिर्फ यहाँ देखो कैसे मानसून का इन्फ्लुएंस का. नेक्स्ट देखिए, देखो, as I told you, the jet stream, they follow curvy path, wavy path, right? समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे जा रहा है जेट स्ट्रीम. क्लियर? आप जा देखो,
So these jet stream, they follow the what? Wavy path around they circumnavigate around the globe. They are surface wind or upper surface wind. They are flowing above 6 to 12 kilometer of height. Let's see here, the place where these winds here taking downward turn. So at this place near Florida, okay, these winds are taking what? Downward turn. So here convergence of wind will take place. Sometimes Florida records higher temperature than Alaska. This is what we referred it as polar vortex. पिछले 3 साल से आ रहा है यूएसए में, रोज न्यूज में आता है कि नहीं, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में. ये तो क्वेश्चन है यूपीएससी का, पोलर वर्टेक्स. ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में. तो देखो कन्वर्जेंस हुआ, यूरोप डाइवर्जेंस हो रहा. हियर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दिस इज व्हाट सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सारा रीजन. क्या हो रहा है यहाँ? डाइवर्जेंस की कन्वर्जेंस. सो इन दिस रीजन, सेंट्रल एशिया रीजन, अगेन वी हैव कन्वर्जेंस. ऑन टिबेटन प्लेटू रीजन, दिस वन वी हैव डाइवर्जेंस. सो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस. बात समझ पा रहे हो? ड्यूरिंग द फ्लो, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द जेट स्ट्रीम टुवर्ड्स द ग्लोब, since they adopt wavy path, sometimes at some places convergence of wind take place and some places divergence of wind take place. So in central India, central Asia region like Tajikistan, like Hindu Kush mountain, here convergence of wind is taking place, and this convergence led to the formation of cyclone like condition. क्या बन गया? Cyclone. And yesterday in our demo classes, yesterday we discussed what is the direction of the movement of the cyclone in the northern hemisphere? Very good. Anti-clockwise. ये कैसा घूमता है ये? Anti-clockwise. So these anti-clockwise circulation here, they pull the jet stream towards the Indian land mass. किधर घूम गया ये? इंडिया की तरफ आ गया. So convergence always lead to the formation of cyclone like condition, and we know cyclone moves in anti-clockwise direction in northern hemisphere. So इसको कहाँ लेता आया ये? इंडिया में. ये this phenomena normally take place around in the month of September, October. So cold waves of North India, especially Delhi, UP, Bihar, Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, right? So what is jet stream? In a layman language, jet stream is nothing. It kind of descending jet stream, descending cold waves. Cold waves in India are what? Descending jet stream. So in the month of September, October, here convergence takes place. This convergence led to the movement of these cold winds towards the Indian land mass, and most of the India is here, northern part of India, it is still remain under the influence of jet stream till the month of April, May. ये कब तक रहा? ये ठंडे के चपेट में till अप्रैल मई तक. ये चीज समझ आई मेरी? पल्ले पड़ रहा है? शरीर आत्मा यही है. मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग? अब जरा देखो, अब गौर करो. अब इसको यहाँ छोड़ते हैं. देखो सन कहाँ रहता है भाई? दिसंबर के मंथ में सन किधर है? टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, सदर्न हेमिस्फीयर. तो हियर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, these cold waves, these jet stream disappear from the Indian land mass. ये हट गया. धीरे धीरे हिंदुस्तान में गर्मी बढ़ने लगी. कितनी गर्मी पड़ रही देखो तो दिल्ली में, आगरा,
अमृतसर, चंडीगढ़, पूरी त्राहिमाम मचा है ना। तो देखो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, तो ड्यू टू नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द सन, क्लियर, दी जेट स्ट्रीम डिसअपियर फ्रॉम द इंडियन लैंड मास, क्लियर। एट द सेम टाइम here melting of snow does take place in the high altitude areas of Tibetan Plateau. Tibetan Plateau itself is 4500 meter from the mean sea level. Its height is how much? 4500 meter from mean sea level. Regarded as roof of the world. दुनिया का छत. Why it is roof of the world? It's so extensive, so unique, clear. It is referred as median mass of Asia, right? And its height is how much? 4500 meter, 4.5 kilometer from the mean sea level. Are you getting? So here melting of snow does take place, and as well as divergence of this what jet stream take place. So wherever convergence will take place, cyclone like condition will form. Wherever divergence will take place, anticyclone like condition will take place. And cyclone move in anti-clockwise direction, anticyclone move in clockwise direction. आया समझ में? पहले पढ़ा, अब जरा देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक चीज गौर कीजिए, एक this divergence or melting of snow led to the what? AC, short में लिख दे रहे AC, anticyclone like condition. And anticyclone move in, कभी भी जिंदगी में भूल जाओ, बस इसको ऐसे याद रखना, सिंपल। देखो जब भी भूल जाओ, 2 महीना, 6 महीना, 4 महीने बाद भी अगर क्लास आपने थोड़ा सा भी अटेंड किया मेरा, खाली सिर्फ एक तरफ, इसको ध्यान रखना। ये क्या चीज? क्लॉकवाइज, और इधर एंटी क्लॉकवाइज। ये इंडिया की तरफ मोड़ रहा है, ये भी इंडिया की तरफ मोड़ रहा है, सिंपल। ये सितंबर अक्टूबर में हो रहा है और ये मई में हो रहा है, छोटी सी तो बात है। देखिए तो दिस एंटी साइक्लोन लाइक कंडीशन इट पुल्स जेट स्ट्रीम टुवर्ड्स कहाँ? इंडियन लैंड मास एंड फॉलोइंग कोलकाता, खड़गपुर, बेंगलुरु एक्सेस, ऊपर से आ रहा हिमालय से होते हुए, इट डिसेंड्स कहाँ पे? हेयर मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड, यहाँ आके उतर रहा है, फॉलोइंग द कोलकाता, खड़गपुर, बेंगलुरु एक्सिस, ये ऊपर से आके यहाँ नीचे उतर रहा। समझ आई मेरी बात? लास्ट अंतिम चीज देखो, अब आओ जरा सा ये लोकल, ये कौन सा विंड था दोस्तों बोलो? ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये क्या चीज था? इक्वेटर। क्लियर? पक्का? ये कहां पे जन्म हो रहा है? ये प्रोसेस, ये फिनोमेना कहां पे हुआ? तिब्बतियन प्लेटू के मुंडी के ऊपर है, उसके छत के ऊपर। कितना ऊंचा है? 4500 मीटर। क्या किया उसने? उसको खींच लिया, खींचने के बाद नीचे आया, यहाँ के हवा अब किसको धक्का मारेगा? ट्रेड विंड को। कहाँ के ट्रेड विंड को? सदर्न हेमिस्फीयर को। अब इसको धक्का मारा। ये घटना होती 1 जून के आसपास में। ये फिनोमेना कब होता है? 1 जून के आसपास। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद अब ये इक्वेटर को क्रॉस करे, तो कोई भी चीज इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो किधर मुड़ेगा? वेरी गुड, राइट हैंड साइड। अरेबियन सी ब्रांच, गुजरात ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। समझ आया? तीन हमारे क्वेश्चन थे। क्या क्या? वाई सडन ऑनसेट ऑफ मानसून टेक प्लेस since the descending of this jet stream, this local jet stream, Tibetan jet stream, और इसको बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, शॉर्ट में इसको याद रखना है EJS, the easterly jet stream, the Tibetan jet stream। कब हो रहा है? The descending of this jet stream take place around 1st of June। क्लियर? और ये आके क्या किया? All of a sudden it pushes the trade wind of whom?
southern hemisphere. As a result, its kinetic energy suddenly increases and it enters into the India in the form of monsoon. Clear है कि why sudden onset of monsoon take place? Now, अब जरा देखो second चीज, why sometimes monsoon became fail or delayed? सोचो जरा सा, अगर मॉनसून किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन, इधर देखो तो, फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन. अगर ये एंटी साइक्लोन बनने में 2 दिन 3 दिन लेट हो गया तो मॉनसून क्या होगा? 2 दिन 3 दिन लेट होगा. जब जब ये एंटी साइक्लोन बनेंगे तब तब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को वो पुश करेगा और ये आके इनको पुश करेगा. तो why sometimes monsoon become fail or delayed? A lot depend on the whom? Anticyclone formation in the upper atmosphere of the Tibetan plateau. Since this phenomena is not continuous, clear? So monsoon is also not continuous. ये ब्रेक हो के इंटरमिटेंट है. आज बना, 10 दिन बाद बना, 15 दिन बाद, जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे नीचे आएंगे, वैसे वैसे इसको पुश करेंगे. समझ गए? पक्का? कोई डाउट? एनी क्वेरीज? I hope you got all your 3 answers. Clear? So this is latest one, jet stream theory. The first one I told you, traditional theory of Baba Adam theory, like Al-Masudi, Arabian scholar like Siddhi Ali. Clear? ये वाला कौन सा है? लेटेस्ट है, मार्केट में नया लॉन्च आया है. कौन सा? जेट स्ट्रीम. ओके, समझ में आई मेरी बातें? अब इसको मैं मिमिक्री कर दूं, आवाज देना तुम लोग. अब मैं साउंड नहीं दूंगा, अब आप लोग ने बोलना है बस. पक्का? सोच लो. वाह, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त. नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन. सूरज किधर होता है दिसंबर में? किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा. नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन. क्या हो गया इसकी वजह से? At the same time, समझ आया? पक्का? अरे सब कुछ हैंड आउट मिलेगा, लिखवा देंगे, सब कुछ समझ आया. पिक्चराइज हुआ वीडियो की तरह. क्रिस्टल क्लियर है? एनी क्वेरीज? ठीक है. Thank you so much for patiently bearing me for almost 2 hours. Okay? कोई queries? हाँ, yes. एंटी साइक्लोन. देखो, बर्फ वगैरह बन रहा है ना, कहीं भी दुनिया में जब कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन लाइक कंडीशन. और डाइवर्जेंस जहां पर होगा, डाइवर्जेंस क्यों होगा? सोचो, हाई प्रेशर लाइक कंडीशन है, स्नो वगैरह है, ठंडा है, इतनी ऊंचाई पर डाइवर्जेंस की वजह से क्या होता है? हवा दूर जाती है. और देखो, ऊंचा है ना, इतनी ऊंचाई पर है, ठंडा है, इसके आसपास का एरिया देखो, इसको ब्रॉडर सेंस में देखो, इसे इतना ऊंचाई, ठंडा, बर्फ. बाजू में देखो, थार, सान प्लेटू, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट हैं. चारों तरफ क्या है? इतनी गर्मी है. गर्मी से यहाँ कैसा प्रेशर और यहाँ पर कैसा? तो एक ये वजह है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट. तो एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर से लो प्रेशर. अब देखो, उस वक्त वीक रहता है. नॉर्दर्न ट्रेड विंड हिमालय की तरफ से आ रहा है तो उतना प्रभावशाली नहीं रहता.
ठीक है, यही तो टसल है, यही तो है मानसून। अब देखो, गौर करो, क्यों हैंग कर रहा है भाई? टाइम हो गया इसका भी। चलो आज देख लो इसको। आहा, हैंग कर गए, हैंग कर गए। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो छोटा सा मैप बना लो। ओके, गौर करो, ये कौन सा इवेंट था? ट्रेड विंड। ओके, और दिस वन बोलो, मॉनसूनल विंड्स है, पक्का ना? अभी भी कोई डाउट है? चलो, अब देखो दो कंडीशन हो सकते। हम लोग कॉलेज में एक बार बचपन में ये खेला है, वो टग ऑफ वार जो होता है। तो एक्चुअली देयर इज टग ऑफ वार बिटवीन दीज मॉनसूनल विंड एंड ट्रेड विंड्स। यही तो असल पूरी मॉनसून की कथा है। यहाँ देखो, क्या नोटिस कर पा रहे हो? देखो, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून जुलाई ड्यूरिंग समर सीजन दे आर मोर पावरफुल, दे आर मोर पावरफुल। दे पुशेस द, धकेल दिया किसको? होम। दे पुशेस द ट्रेड विंड टू रिसीड टुवर्ड्स द लैंड। ये पूरे इसके, दिस होल इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्चर लेडन मॉनसूनल विंड। ये हेलो, दिस वन, गुलाबी वाले ने वाइट वाले को पूरा क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, धक्का दे दिया। ये पूरा ये ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गया, बारिश ही बारिश। ठीक है, कोई दिक्कत? और सितंबर अक्टूबर में किसका रोल ज़्यादा है, किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? ट्रेड विंड का। ये बीच में ये देख पा रहे हो, ये इसी को हम बोलते हैं फ्रंट या ट्रफ, ये मॉनसूनल ट्रफ। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, ओके, दिस ट्रफ establishes itself over बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, और इसी के आसपास साइक्लोन आता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द साइक्लोन occurs in India in the month of September, October. Clear? Last year 99 such depression arrived in India in the month of October. क्यों? क्योंकि वो लाइन है कहाँ पर है? सितंबर अक्टूबर में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। और समर के सीजन में क्या होता है? ये मोर और लेस टुवर्ड्स द लैंड। तो एक बार ये पावरफुल होगा, चला गया, खूब बारिश हो रही है इंडिया में, और एक बार ये पावरफुल होगी। तो दिस लाइन इटसेल्फ ऑसिलेट, दैट्स व्हाई रेनफॉल इन इंडिया आल्सो ऑसिलेट। आई होप क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर listening me for almost 2 hours. Okay.